Hello friends, welcome. This is Ashish Pathak here and we are here to discuss about mechanism of action of digitalis. So let's start with general introduction of myocardial cell. This is sodium potassium pump which causes efflux of sodium ions and influx of potassium ions, means opposite concentration gradient, and therefore this is also known as sodium potassium ATPase, as this is active transport. This is sodium calcium exchanger where exchange between sodium and calcium takes place. Whenever intracellular level of sodium decreases, there will be exchange between calcium and sodium after activation of this exchanger. This is membrane calcium channel, L-type calcium channel. L means long lasting. When this membrane calcium channels open, this triggers release of sarcoendoplasmic calcium. This is known as calcium induced calcium release. This released calcium finally interact with actin myosin complex, which results in myocardial contraction. So we are here to discuss about mechanism of action of digoxin, one of the main chemical constituent of digitalis. Digoxin is used for the management of congestive heart failure. Now, what is congestive heart failure? Congestive heart failure is inability of heart to meet the metabolic demand of body. So, what will be the target of digoxin here? Digoxin will increase intracellular level of calcium and therefore increase myocardial contractility. So how digoxin works? Digoxin selectively binds with extracellular phase of sodium potassium ATPase and inhibits this enzyme. Inhibition of this enzyme results in progressive accumulation of sodium intracellularly, and which indirectly results in intracellular calcium accumulation. This calcium shifted to sarcoendoplasmic reticulum with the help of SERCA, and therefore there will be increased calcium concentration in sarcoendoplasmic reticulum. Thus, during systole, entry of calcium from membrane calcium channel triggers release of high amount of calcium from sarcoendoplasmic reticulum, increased contractility, and that will be beneficial to manage congestive heart failure. Let's see it again. ये आपका यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप है. इसका काम क्या है? इंट्रा सेलुलर लेवल जो सोडियम का है, अंदर जो सोडियम आयंस हैं इनको बाहर की तरफ भेजना, और बाहर जो पोटेशियम आयंस हैं उनको अंदर की तरफ लाना. ये अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है, इसीलिए इसके नाम में आप देखेंगे तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज यहां पर लगा हुआ है. पास में आप ये देख रहे हैं NCX मींस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर,
यहां पर सोडियम और कैल्शियम के बीच में एक्सचेंज होता है। मींस जब भी इंट्रासेल्युलर सोडियम का लेवल कम होता है, एनसीएक्स एक्टिवेट हो जाता है और ये बाहर कैल्शियम भेजता है, उसके बदले में सोडियम अंदर लाता है। यहां पर ध्यान देना है आपको कि एनसीएक्स तभी एक्टिवेट होगा जब इंट्रासेल्युलर सोडियम का लेवल कम होगा और इसके बदले में हमें कैल्शियम बाहर भेजना पड़ेगा एक्सचेंज करने के लिए। तो अगर सोडियम का लेवल इंट्रासेल्युलरली कम नहीं होता है तो एनसीएक्स वहां पर एक्टिवेट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एल टाइप कैल्शियम चैनल, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल भी जिनको हम बोलते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन कैल्शियम चैनल्स। ये कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं, कैल्शियम आयंस अंदर की तरफ आता है। ये कैल्शियम आयंस सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम के रिलीज को ट्रिगर करते हैं, जिसे बोला जाता है कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। तो सिस्टोल के दौरान कैल्शियम आयंस इन मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू अंदर आएंगे और ये सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम के रिलीज को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। फाइनली जो कैल्शियम आयंस है ये एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट करेंगे और वहां पर होगा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। हम यहां पर मैकेनिज्म एक्शन की बात कर रहे हैं, डिजॉक्सिन की, जो डिजिटैलिस का एक मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहां पर डिजिटैलिस या डिजॉक्सिन का क्या यूज है? डिजिटैलिस या डिजॉक्सिन की अगर हम बात करें तो उनका यूज किया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को मैनेज करने में। मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम जब भी होगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितने ब्लड की बॉडी को जरूरत है। मींस हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई। तो डिजिटैलिस का टारगेट क्या होगा? डिजिटैलिस का टारगेट होगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इंट्रासेल्युलर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा के। देखते हैं कैसे काम करता है आपका डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपेस के एक्स्ट्रा सेलुलर फेस से बाइंड हो जाएगा, जिससे अंदर का सोडियम बाहर नहीं जाएगा। मींस इंट्रासेल्युलर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर इंट्रासेल्युलर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो हमें एनसीएक्स को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, एनसीएक्स एक्टिवेट नहीं होगा। मींस अंदर का कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा। मींस इनडायरेक्टली ये कैल्शियम का लेवल भी बढ़ा देगा। और कैल्शियम का लेवल जब बढ़ेगा तो कैल्शियम का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। थ्रू सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेस कैल्शियम ज्यादा स्टोर होने लगेगा। सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। मींस ड्यूरिंग सिस्टोल नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा। नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा मींस नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट करेगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी मींस पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट यहां पर आ रहा है और ये मैनेज करेगा कौन सी कंडीशन को? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन को। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या डिजॉक्सिन लगातार बाइंड होता रहेगा? नहीं। जैसे ही डिजॉक्सिन यहां पर बाइंड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है एंड रेज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम लेवल डिक्रीजेस बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन एंड देयरफॉर देयर इज कंट्रोल्ड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। वो लगातार बाइंड नहीं होता रहेगा। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि रेज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे ही डिजॉक्सिन की बाइंडिंग कम होती है। अगर किसी को ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है तो वहां पर रिस्क बढ़ जाएगी अगर हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन में आप डिजॉक्सिन दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज द mechanism of action of digitalis or digoxin. Thank you.